ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. السلام علیکم. تھوڑا سا راستہ دیں تھوڑا سا. چند تصویریں ہیں ہزاروں کی تعداد میں. جی بچے ہیں وہ جی اسے تو ابھی 15 سال ہو گئے ہیں لاپتہ ہے. اور اس کی بائک کو ابھی جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا. جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں اپنے مسنگ پرسنس کے لیے انہیں بھی اب ان فیملیز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آواز نہ اٹھائے, کوئی بولنے والا نہ ہو ان کے لیے. بلوچستان میں جتنی ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں بس سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, کوئی نہ بولے, کوئی اس ریاست کا مکروہ چہرہ نہ دکھائے دنیا کو. ابھی تو سارے ملک میں ہو رہی ہے, اب وہ پھیل گیا ہے. بہت بس شکر ہے کہ سب کے ساتھ یہ ہو, سب کو پتہ چلے کہ بلوچ پچھلے 75 سالوں سے کیا سہ رہے ہیں. پہلے تو سب بلوچوں کو کہتے تھے کہ یہ ڈرامے باز ہے, یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ فلاں ہیں. ابھی ہر قوم کے ساتھ, ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو سب کو احساس ہوگا کہ بلوچ کیا سہ رہا ہے. لیکن ہم پاکستانی کے طور پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہاں پہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں بلوچ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو جو حکومت ان کو لانے والے کون ہیں میم؟ نہیں لیکن ہیں تو وہی نا بلوچ ہیں. وہ اپنے علاقے کے لیے خود بھی تو آواز ان کو اٹھانی چاہیے نا. تو انہیں ہم بلوچ نہیں سمجھتے, ہم انہیں بلوچ نہیں سمجھتے. وہ ریاست کے بلوچ ہوں گے, ان کے بلوچ ہوں گے جو 10 ووٹ میں آتے ہیں, راتوں رات حکمران بنتے ہیں. لیکن ہمارے بلوچ نہیں, ہمارے لیے وہ بلوچ نہیں ہے, ہم انہیں بلوچ کنسیڈر نہیں کرتے. وہ ریاست کے لیے بلوچ ہیں. بابو کتنے دن ہو گئے؟ میم آج ہمارا 9واں دن ہے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں بھی ہم نے کوشش کی لیکن وہاں پہ ہمیں سنا نہیں گیا. اور جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہو اس حکومت نے ہم پہ کریک ڈاؤن کیا, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا, MPO کے چارجز لگائیں, فائرنگ کیے, کتنے لوگوں کو مارا. تو ہم عدالتی جو قانونی طریقہ ہے وہ بھی 4 مہینوں سے ہم فالو کر رہے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. ججز سرکار کی ہے, جو وکیلیں ہیں انہیں خرید رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہمیں سنے گا. میڈیا بلیک آؤٹ ہے بلوچستان میں. علیمہ, آپ کی عمران خان سے ملاقات جو ہوتی رہی ہیں اس میں کبھی لاپتہ افراد کا ذکر ہوا اور ان کے کیا خیالات؟ انہوں نے خاص ابھی جو یہ مائک جو لاسٹ ہماری ہوئی ہے نا اس کے بعد تو بند ہی کر دیا ان کی ٹرائلز. جو لاسٹ ٹرائل تھی انہوں نے خاص ان کو کہا تھا کہ مارن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. انہوں نے پارٹی کو کہا تھا ان کی جو الائنس ہے اس کے اندر شامل کریں کہ جو جتنے پاکستان میں افیکٹڈ ہوں تو سندھ میں بھی, بلوچستان, یہ جو ہمارے سرحد کے اوپر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا سارے اس وقت پاکستان میں ساروں کو ساتھ لے کر چلیں جو نظریاتی نظریے کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں. انہوں نے تو یہ کہہ کے بھیجا. لیکن ابھی عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 22 گھنٹے ان کو ایک سیل میں بند رکھ رہے ہیں تاکہ وہ کسی طرح ٹوٹ جائے. وہ کہتے ہیں اتنا ظلم کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کتاب دیتے ہیں کیونکہ وہاں کیا کریں گے. میں نے کسی کو کہا تھا, میں نے کہا آپ ایسے کریں 2 دن کے لیے اب ایک کمرے میں بند ہو جائیں کسی چیز کے بغیر اور دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہمیں لائرز بتا رہے تھے کہ ہم نے قیدی بھی دیکھے, ہمارے جو قاتل ہوتے ہیں وہ جب سیلوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں 4 مہینے کے بعد ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور عمران خان 2 سال سے قید تنہائی میں ہے. لیکن جو 22 جو پچھلے دنوں میں کر رہے ہیں کہ 22 گھنٹے باقی جیل میں ہوتا ہے کہ جو ہر قیدی ہوتا ہے وہ نکل کے باہر آ سکتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک. لیکن ان کا یہ حال ہے عمران کا کہ
खानका के 22 घंटे उस दरबे से नहीं निकलने देते, किसको बात करने और बात भी नहीं इजाज़त किसी को करने जो की, सिपाही हैं उनको भी इजाज़त है तो बात करें मैम और फिर भी किताब भी शुक्र है नहीं कि वो देते। जेल में है ना, आप लोगों को पता है कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो हमारे लोग तो कोशिश क्या कर 10-10, रहे हैं, 15-15 सालों से लापता है। उन माओं को नहीं पता, उन बहनों को नहीं पता कि हमारे भाई जिंदा भी है या नहीं। आप लोगों को तो इतना तो पता है कि वो 22 घंटे उन्हें रखा जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा गया है, या उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही है। हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है या नहीं, किस तरह का जुल्म उन पे किया जा रहा है। यहाँ पे जो माएँ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, 10, 15, 20 सालों से लापता है। खुद मर गई इंतज़ार में, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं लाए गए। हम समझते हैं, ये माएँ समझती हैं कि जेल में होना बेहतर है, हमारे बच्चों को जेल में ही रखा जाए, बस रखा जाए, हमें पता हो कि लापता का मतलब इनका क्या ख्याल है कि लापता का मतलब है कि उनको मार दिया गया या कहीं क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, क्या जेलों में है, ये किसी को कोई इल्म नहीं है। अगर जेलों में नहीं है तो कहाँ होंगे? मतलब लापता टॉर्चर का सेलों मतलब में है है इनके, तो क्यों टॉर्चर रखेंगे? सेलों में है, कैंट में है इनके। वो ये सवाल हम उनसे 75 सालों से पूछ रहे हैं कि इनका क्या जुर्म है, किस जुर्म के तहत आप इन्हें रख रहे हैं। अभी ये तो वो कई तो 10-15 चले गए, सालों कई में माएँ करना तो है। चली गई, मर गए, और बाकी जो है ना, आने वाली नस्ल, पिछली नस्ल इन अजियतों से गुजर गई, ये नस्ल गुजर गई, और आने वाली नस्ल भी यही चीज़ें फेस कर रही हैं। अब सारा पाकिस्तान कर रहा था कि जब लोगों को यही बताया जाता था, मतलब क्या कहते थे कि वहाँ पे रॉक आ रही है बलूचिस्तान में, और इधर दहशत गर्द हैं हमारी या ट्राइबल एरिया में, यहाँ पे दहशत गर्द हैं, और उधर अब इंडिया रॉ ऑपरेट कर रही है, और रॉ कर भी रही है, क्योंकि जब जब इस किस्म का हालात होंगे, जब हकूक़ नहीं मिलेंगे, तो बाहर से लोग तो फिर बाहर के लोग तभी एंटर करते हैं जब हालात आपस में अमन। इमरान खान हमेशा कहते हैं ये जो बंदूक के ज़रिए कोई दुनिया का हल नहीं होता, हमेशा मेज़ पे बैठ के अमन। अभी आज भी उन्होंने कहा है कि अमन के लिए, अगर अमन के लिए कोई खड़ा हो रहा है, अमन के लिए सबके साथ आप खड़े हो। हम भी, हमारे जो लोग हैं, जो मेरी बहन है और उनके साथी हैं, वो भी उसी अमन के लिए आज कैद हैं। उन्होंने भी यही कहा रियासत से कि आप, हम पुरअमन लोग हैं, हमें सिर्फ जीने का हक़ दें, आप हमारे वसाइल ले लें, हमारी जितने भी सब कुछ हमें लेकर जाए, लेकिन हमें जीने का हक़ दें, हमारे लोगों को जीने का हक़ दें। लेकिन ये जो बातें हैं, ये रियासत को बर्दाश्त नहीं कि कोई आए और उनका जो चेहरा है वो उन्हें दिखाए, उस दुनिया को दिखाए कि वो कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। अब देखिए, ख़वातीन घर से निकलेंगी, इंशाल्लाह बहनें माएँ ख़ुद खड़ी होंगी। अगर इस मुल्क के लिए अपने बच्चों के आगे पहले हम खुद खड़े होंगे, ताकि पहले हम खड़े होंगे। अगर हम खड़े होंगे तो बेटा और कोई हमारे पास अब ऑप्शन नहीं, अपना मुल्क भी बचाना है। हमारा मुल्क हमारी आपकी जमात इक़्तिदार में आ गई तो आप आज लापता अफराद के इस कैंप मेरी में मौजूद जमात हैं। देखिए, मेरी बात सुने, हमारा भाई इस वक्त जेल में है। पहले आप समझ लें, एक सिर्फ बात समझ लें, हमारा भाई इस वक्त 22 घंटे की कैद में है और कैद तन्हाई में है। तो अगर इस वक्त देखें, पाकिस्तानियों को उन्होंने यही कहा कि जो जुल्म का निज़ाम है इसके लिए ख़ुद खड़े हो जाओ। अगर आप लोग 24 करोड़ अगर हम लोग खुद ही नहीं खड़े होंगे, अपने मुल्क को खुद ही नहीं ठीक करेंगे, ये नहीं कि हम सारे इतने अच्छे लोग हैं। अगर हम औरों को तो कह देते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन हम खुद भी तो अपने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना। इंशाल्लाह अगर हम खुद खड़े होंगे, हम ये कबूल करते हैं निज़ाम, तो ये निज़ाम चलेगा। जब हम नहीं कबूल करेंगे, इमरान खान क्या बारी बारी कहते हैं कि ख़ुद अब इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है, और जब हम करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान तब्दीली के रास्ते पे लग रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर बाशऊर हो गए हैं, ये भी खड़े हो गए, माएँ खड़ी हो गई हैं, बच्चे खड़े हैं। अगर ये भी खड़े, अगर औरतें खड़ी हो गई हैं, माएँ खड़ी हो गई हैं, तो हम ही बताएंगे अपने बच्चों को और अपनी अगली नस्ल को कि हमारा इसमें क्या है। हम आप लोगों के लिए खड़े हैं और हम आपके लिए हिम्मत कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह 2021 में भी आए थे, तब इमरान खान का हुकूमत था, हम डी चौक पर भी बैठे रहे, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। और
जो जमायत होती है वो इक़्तिदार में होते हैं, वो वादे करते हैं लेकिन बाद कहाँ में से वो लेकर खामोश आए? हो आप जाते बताएं, हैं। नहीं कहाँ से लेकर आए? अगर उनके पास भी पता हो, वो कहते हैं लापता है, पूछते हैं। फौज के पास है पता मैम, नहीं, ये फौज एजेंसियों के पास है, फौज के पास एजेंसियों, ये पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनके पास हैं। ये माएँ गवाएँ कि रात को आती हैं, छापे मारते हैं, उनके बच्चों को लेकर जाते हैं। FC है, आप फौज मेरी है, एक वीगो सेकंड बेटा, गाड़ियाँ हैं। मेरी बात सुने। हमारे कज़न का बेटा इस्लामाबाद से वो लापता हुआ है और कई सालों से उसकी माँ को नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर पूछते और रहे। हम प्राइम आज मिनिस्टर भी एज अ हैं, प्राइम मैम। मिनिस्टर नहीं सुन लेना, आप सुन ले हमारा पहले। कज़न का बेटा इस्लामाबाद में डॉक्टर था, लापता हुआ। एज अ प्राइम मिनिस्टर खान साहब पूछते रहे इनसे, कहते ये बता दो कि किसके पास है, MI के जिंदा पास है है, या ISI के जिंदा पास है है, कि जिंदा है नहीं है, ये कहते रहे नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं। और फिर काफ़ी अरसे बाद, कब की बात, अभी 5 सालों के बाद उन्होंने उनको तस्वीर भेजी कि आपका बेटा शहीद हो गया, उसकी नमाज जनाजा हो चुकी और हमने दफना दिया। किसने तस्वीर भेजी? कि जो नहीं एजेंसीज ही भेजती होंगी। और उन बेचारे जो उनके माँ बाप जो है ना, इस वक्त ज़हनी तवाज़ुन दोनों का बेचारों का ख़राब हो चुका है। तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो इतने बेबस थे तो उस वक्त उन्होंने कौम को क्यों नहीं बताया? कौम को क्या बताते, क्योंकि वो खुद अभी इनके साथ डील कर रहे थे। अब तो पता चल गया कि देखें उन्होंने बताया, हाँ, और उन्होंने सब मेंगल साहब की खान साहब के साथ डिटेल में बात हुई थी। कुछ लोग उसी खान साहब की काविशों के बुनियाद पे अख्तर मेंगल साहब आपको कंफर्म कर सकते हैं, कुछ लोग रिहा भी हुए थे। उन्होंने एक बहुत तवील लिस्ट दी थी जब परवेज़ खटक साहब उस वक्त थे और जहांगीर तरीन, उनकी एक मीटिंग हुई थी और फिर वो खान साहब के सामने उन्होंने यही मुतालिबात रखे थे जो इन हमारे माओ बहनों को कहे। जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट की थी और उसमें से कुछ लोग रिहा हुए थे। अख्तर मेंगल साहब इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये मसला खान साहब जब 2018 में प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले का है और इसका इलाज भी हमने इस तरह के, हम ब्लेम गेम से इसका इलाज नहीं निकाल सकते। आज हम सारे यहाँ पे मजलूम खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मजलूम खड़ी है, बलोच कौम भी मजलूम खड़ी है। हम इन मजलूमों को इकट्ठा करके इस पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं। अब अगर खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म इतने बेबस थे तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो क्या कर पाएंगे? नहीं, वो तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, वो तो तब्दीली लाना चाहते हैं। वो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हैं जिसकी वजह से वो आज जेल में है। अगर वज़ीर आज़म बनना होता तो उनको तो रोज़ पेशकश होती है कि आप बात करें, बाहर आएँ, हम आपको बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन 2 साल चुप बैठे रहें, हाँ, उसके बाद आपकी बारी आ आपकी जाएगी। ये बारी। तो शुरू कर दिया था वो, जब क्यों जेल में बैठे हैं। पहले आप ये देख लें कौन आज तक वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो इस कौम के अंदर तब्दीली लेने के लिए आए हैं। लोग पूछते हैं कि आप, कई लोगों ने आज भी हमें कह रहे थे कि जी बस कोई बीच का रास्ता निकाल के बाहर आ जाए, बाहर आके कुछ करें। मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं जेल में बैठे, वो इस कौम को जगाने के लिए बैठे हैं। 24 करोड़ लोग अगर खड़े होकर अपना हक नहीं मांग सकते तो उसके बाद तो फिर यही जुल्म तो होगा ना। ये देखिए, आप ये डॉक्टर, देखिए ये जब कौम खुद तब्दील हो जाएगी ना, तो फिर जो ये कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये बताएं अगर डॉक्टर- आप सुने, अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए और कौम तब्दील नहीं हुई है तो आप प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक कौम खुद तब्दील होगी तो जो ये कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा, डॉक्टर मारंग बलोच को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने की डॉक्टर मारंग बलोच को मिलने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? क्या आप कोयटा जाएंगी? नहीं, हम तो इस वक्त सारे दिन अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। पॉइंट से उनकी बहन उनके पास जाएंगी, हम अपने भाई के, इस वक्त वो जो कैद तन्हाई में 22 घंटे के लिए बैठे हुए हैं, हमें अपने भाई के लिए इस वक्त खड़े होना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। तो डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई कैसे होगी? जैसे हमारे भाई की होगी, फाइट करेंगे सारे। हाँ, जैसे हम लड़ रहे हैं, लोग खड़े हो। देखिए सिर्फ बहन भाइयों का काम है सिर्फ खड़े होना, जो लोग खड़े होते हैं उसके साथ सारी कौम का काम है खड़े होना, सारे पाकिस्तान को। क्योंकि आज जिनके साथ जुल्म हो रहा है कल सबके साथ होएगा और लोगों को पता है ये बात। इंसाफ आज अदालत के अंदर आपको बताते हैं कि वो कहें कि जी हमें अदालत में नहीं जाने दे रहे थे, जेल में, तो जज कहे 15-15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोक रहे थे और जज कह रहा था बाहर से बुला के लाओ। पुलिस वाला जज की नहीं सुन रहा। अगर पुलिस वाला एग्जीक्यूटिव जज की सुनना बंद कर दें, जो आजकल हालात हैं, कल आप बताएं किसी बंदे को यहाँ से उठा के ले जाएं, अबडक्शन आज पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और फैलेगी। कल किसी को उठाएंगे,
کتنے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر جا کے پاکستانی ڈوبیں گے. دیکھیں سب سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ بلوچستان یکجہتی کونسل جو ہے یہ بھی آپ کے احتجاج میں شامل ہوں؟ میری بات سنیں, آپ یاد رکھیں پاکستان میں جوان سب سے دنیا کی ہائیسٹ جو ہے نا امیگریشن اس وقت پاکستان سے ہو رہی ہے. اور پاکستان سے غربت سے نہیں ہو رہی, بے روزگاری, پڑھے لکھے جوان پاکستان کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے احتجاج میں شامل ہوں, جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں وہ سب آپ کے احتجاج مقصد پہ ہے نا. دیکھیں وہ اور ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے, سب ایک ہی چیز کے خلاف, ایک ہی ادارے کے خلاف کھڑے ہیں. ہم بھی اس کے کھڑے ہیں, یہ بھی. نہیں ہم دیکھیں آپ نے رول آف لا ہوگا تو سارے دستیاب ہوں گے. علیمہ میم یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے مینٹین ہوگا؟ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بلوچوں میں اسپیشلی حکومت کی طرف, وہ کیسے مینٹین کریں گے؟ ہماری تو حالت دیکھ لیں, ہم 2 سال سے جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں. اور یہ 1970s سے میں تو دیکھیں سب نے کھڑے ہونا پاکستان کے لیے نا. تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے مینٹین ہوگا جب پاور امبیلنس اتنا ہے؟ ایک مظلوم قوم ہے. ہر ایک پاکستانی کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو, رول آف لا کے لیے کھڑے ہو. ہم سب نے اگر پاکستان مل کے نہیں کھڑا ہوگا, پاکستان ایک قوم بن کے نہیں کھڑا ہوگا, تو یہ ظلم ہوتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. اور یہ بلوچستان اور پنجاب نہیں, یہ سارا پاکستان ہے. اور یہ سب بلوچستان میں نہیں ظلم ہو رہا, آپ دیکھیں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. کوئی رول آف لا نہیں ہے, رول آف لا آئے گا اور وہ آپ دیکھ لیں وہ ٹرسٹ کو لیکن مینٹین کرنا ہوگا نا, وہ بریج کرنا ہوگا. جب انصاف آئے گا تو پھر ٹرسٹ واپس آئے گا. جب نظام ٹھیک ہے نا. آ جائیں آپ.